because it's so obvious that for some people, some communities, some countries at this COP, the transformation that is happening now is not a matter for, as I was saying, it's for our children and our grandchildren. This is something that is an existential threat as we sit here in Glasgow today. And last year, 600 billion tons of ice melted away in Greenland. All that water has to go somewhere. And it's incredibly cruel that these vulnerable, small island states are right in the front line of the loss and damage that is caused by global warming. And of course, as they have said, as our friends have said, they have done virtually nothing to cause the problem. They didn't produce the huge volumes of CO2 that have been pumped into the atmosphere. So I would encourage every country that has benefited from pumping CO2 into the air over the last, whatever it is, 250 years, to join this campaign and to help. And that's why we've made the $100 billion a year commitment, the $100 billion a year commitment, such a crucial part of the UK's presidency and pre-presidency. And I think that we've got to do it. We've got to help people to adapt. We've got to mitigate, but above all, we've got to change the numbers. We've got to bend the curve. We've got to stop this remorseless increase in CO2, because there are people around this room whose populations, vulnerable populations who have done nothing to deserve it, will be in the front line and will suffer catastrophic loss and damage. And by the way, it's those small island states, and Frank was there, everybody, all those small island states who at Paris managed to change the ambition and ensure that we didn't just commit to keeping the increase in temperatures to 2 degrees, but keep it to 1.5. Because they knew the difference. They knew the difference between 2 and 1.5. And it's the difference for many people, and I don't want to exaggerate this, but the difference between life as we know it and not being able to continue with life as we know it. Between life and death. And that's the reality. And that's the reality we have to face in all sincerity. And I think it was Frank who taught me yesterday something that I didn't know. It's about 1.5. There's a very simple way of expressing the desire to keep 1.5 alive and survive at 1.5, and that's to make this sign. I already know this. You got that, Tariq. Did you know that, Narendra? You did already. I was a new one on me. Anyway, I want to do it now. Keep 1.5 alive, everybody. Thank you very much. I'm now going to hand over to the initiator of this vital initiative, my friend and colleague Narendra Modi. Narendra, over to you. Excellencies, infrastructure for resilient island states आइरिस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और UK समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं UN सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसीज, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो शीर्ष देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए सीडीआरआई या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। फ्रेंड्स, सीडीआरआई किसी सेमिनार से निकली कल्पना नहीं है, बल्कि सीडीआरआई का जन्म बरसों के मंथन और अनुभव का परिणाम है। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आइरिस के साकार करने में सीडीआरआई और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आइरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आइरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया इन देशों को कम जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती है।